صدر مملکت اور وزیر اعظم عمران خان کا تیزگاہ میں ایکسپریس آتی زدگی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت، عمران خان نے نوٹس لے افسوس کا اظہار۔ جے یو آئی فے کا آزادی مارچ آج شہر اقتدار میں انٹری کرے گا، قافلہ گجر خان سے روانگی کے لیے تیار، ڈی آئی خان اور جنوبی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا سے بھی قافلے پہنچنے لگے۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا، راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف بھی آج شام اسلام آباد پہنچ کر مارچ میں شرکت کریں گے۔ مارچ کی اجازت دینے پر انتشار پھیلانے والوں کے منہ بند ہو گئے۔ یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی پریس کانفرنس، فردوس عاشقوان نے کہا کہ فضل الرحمان کے دعووں کا حقائق سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے مفتی کفایت اللہ کی ضمانت منظور کر لی، رہائی کا حکم۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مفتی کفایت اللہ کو 3 MPO کے تحت مانسہرہ پولیس نے اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جائے گا۔ نیب نے انسانی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی مخالفت کر دی۔ ادھر چودھری شوگر ملز کیس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو 8 نومبر کو طلب کر لیا۔ نواز شریف کا سروسز اسپتال میں 10واں روز، پلیٹلیٹس کی تعداد 39,000 تک پہنچ گئی۔ IVIG کے انجیکشن کی تھراپی روک دی گئی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف کو دل اور گردوں کے سنگین مسائل ہیں، آج پھر چیک اپ ہوگا۔ جن پر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آج جیلوں میں ہے، کسی کے پیچھے ہمالیہ بھی کھڑا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، چیئرمین نیب جاوید اقبال کا سکھر میں خطاب۔ مزید بولے کہ حکومت اور ریاست الگ الگ چیزیں ہیں، ہمارا کام کسی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنا نہیں۔ دیوالی کے پٹاخوں نے نئی دہلی کی فضا زہر آلود کر دی، زہریلی اسموگ کے باعث فضائی آلودگی کا معیار خطرناک حد تک پہنچ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نئی دہلی کے 2 کروڑ رہائشی بدستور زہریلی فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سانحہ کے الزام کے باعث اپوزیشن نے آج اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فیاض محمود سے۔ فیاض محمود، آج کے سانحے کے بعد اپوزیشن کی جانب سے کیا بیان جاری ہوا؟ جی، اپوزیشن کی جانب سے بیان سامنے آ رہا ہے جس میں یہ مسلم لیگ نون کی ترجمان نے بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ رحیم یار خان میں پیش آنے والے افسوسناک ٹرین حادثے کے باعث انٹائر اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کا جو جلسہ تھا 31 اکتوبر کو ڈیسائیڈڈ جلسہ تھا وہ آج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب جلسہ کل کیا جائے گا، یہ کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے جلسہ۔ یہ اسلام آباد جو میں جلسہ آج ہونا تھا، آج کا طے تھا، انتظامیہ کے ساتھ انتظامات بھی مکمل تھے، لیکن ٹرین حادثے کے باعث یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ترجمان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے ہی انفارم کیا ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن کا جو آج جلسہ تھا اس کو کل کے لیے مؤخر کیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا صرف مسلم لیگ نون کی قیادت آج شریک نہیں ہوگی، جس پر انہوں نے بتایا کہ انٹائر اپوزیشن یعنی کہ جو آج متحدہ اپوزیشن کا جلسہ تھا وہ منسوخ کر دیا گیا ہے، تو جس کے بعد اب کل یہ اسلام آباد میں اسی مقام پر
पर जलसा होगा, जहां पर ये डिसाइडेड था, तय किया गया था और इंतजामिया के साथ इंतजाम भी मुकम्मल थे। ये ट्रेन हादसे के बायस, क्योंकि जो अपोजिशन का मानना है कि अफसोसनाक सानिया हुआ है, ये मुल्की तारीख का बहुत बड़ा सानिया है, तो इसमें अपोजिशन आज के दिन ऐसी कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेगी जिससे जो साने के ऊपर बात आए। तो अब कल के लिए इसको मौखर किया गया। अब कल इस्लामाबाद में ही इसी मुकाम पर जहां पर आज ये जलसा होना था, अब कल मुत्तहदा अपोजिशन यहां पर जलसा करेगी। तो अब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया गया है। इससे पहले ज़राए कंफर्म कर रहे थे, लेकिन अब तर्जुमान ने इस खबर को कंफर्म किया। तो फयाज ये बताइएगा, क्या सिर्फ जलसा मनसूख करने का बयान दिया गया या ये भी बताया गया कि मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमा जख्मियों की अयादत के लिए भी जाएंगे? जी, अभी तक तो सिर्फ जलसा मनसूख करने के लिए कहा गया है। जो आज होना था उस जलसे को आज के लिए मनसूख किया गया और साथ ही अगली डेट भी दे दी गई है और ये भी कहा गया है कि कल जलसा होगा और इस्लामाबाद में होगा। जिस मुकाम पर ये डिसाइड था वेन्यू भी वही होगा, लेकिन आज की बजाय अब कल जलसा होगा। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका कि जो सानहे में जख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनकी अयादत के लिए अपोजिशन का कोई वक्त जाएगा या अगर जाएगा तो कब जाएगा। इस हवाले से अभी तक मुकम्मल तौर पर अपोजिशन की जो सतह है उसमें खामोशी है। अपोजिशन की जानिब से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, लेकिन आज का जलसा जो मनसूख किया गया है वो अब कल जलसा होगा और वो इस्लामाबाद में उसी मुकाम पर होगा जहां पर ये पहला जलसा होना था। कल जलसा होगा और इस्लामाबाद में उसी मकाम पर होगा जो पहले से मुख्तसर। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। फजलुर रहमान का कहना है कि जलसा मुलतवी नहीं हुआ, तमाम काफिले अपने वक्त के मुताबिक तरतीब से पहुंचे। आज़ादी मार्च के शुरा गोजर खान में मौजूद हैं। आपको बताएं कि कुछ देर में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जलसा मुलतवी नहीं हुआ, तमाम काफिले अपने वक्त के मुताबिक तरतीब से पहुंचेंगे। आज़ादी मार्च के शुरका गोजर खान में मौजूद हैं, कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने तरदीद कर दिया, उन्होंने कहा है कि जलसा मुलतवी नहीं हुआ। इसी पर बात करेंगे। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा बयानात में तजाद क्यों सामने आ रहा है? उनका कंटेनर पर अब से कुछ ही देर पहले ये कहना था कि जलसा भी होगा और मार्च भी होगा, दोनों ही होंगे। इस हवाले से जो है वो खसूसी तौर पर जो रमदान का सानिया हुआ उस हवाले से उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उसके साथ साथ उनका ये कहना है और इस वक्त वो दुआ जो है वो भी कर रहे हैं अपने आज़ादी मार्च के हवाले से भी और तमाम सूरत हाल के हवाले से और ट्रेन हादसे के हवाले से भी जो है वो उस हवाले से भी जो जख्मी है उनके लिए भी दुआ जो है उनकी सेहत के लिए की जा रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक और अंदोहनाक ट्रेन हादसा। चलती ट्रेन में आग क्या लगी कि दर्जनों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में आतिशज़दगी, 73 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों जख्मी हैं, 3 बोगियां जलकर तबाह हो गईं। पाक फौज के जवानों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मी अफराद को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की तहकीकात करके फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया, जबकि जख्मी होने वालों को 50,000 से 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा, शेख रशीद ने सानहा तेजगाम के जख्मियों की आयादत की। शेख रशीद ने जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर रेलवे शेख रशीद ने शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान का दौरा किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा शाहिद से। राजा शाहिद, दौरे का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक जो हादसा पेश आया है, इसके मुताबिक जो जख्मी हैं जो वो उनको शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो ज़्यादा सीरियस जो जल चुके थे, जो बर्न इंजर्ड हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनको जो है मुल्तान शिफ्ट किया गया है। शेख रशीद से ने यहाँ पर मीडिया से भी बात की है। उन्होंने जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं इनके लिए 15 लाख रुपए का ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो जख्मी अफराद हैं इनके लिए 5 लाख रुपए का भी इन्होंने जो है ऐलान किया है कि इनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अभी शेख जैद अस्पताल में जो है जख्मियों का जहां आमद का सिलसिला यहां जारी है। अभी तक 16 के करीब जो जख्मी हैं वो यहाँ लाए जा चुके हैं। इन ज्यादातर जख्मियों में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेन से जो है चलती ट्रेन से इन्होंने छलांगे लगाई हैं। ज्यादातर की
जो है टांगें मुतासिर हुई हैं, टूटी हैं, इसके अलावा बाजू फ्रैक्चर हैं, हेड इंजरीज हुई हैं। तो इसमें से सिर्फ एक अभी तक पेशेंट आया है जो नेक की जो है बर्निंग का है। इसके अलावा जो है मजीद पेशेंट भी यहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लियाकतपुर अस्पताल से जो मरीज हैं जो ज्यादा जो सीरियस है उनको मुल्तान, और जो कुछ कम है जो माइनर हैं उनको जो है रहीम यार खान की शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। और ये अमल अभी तक जारी है मुसलसल जो है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता है जहाँ पर यह हादसा पेश आया। ये रहीम यार खान से और तहसील अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर के दरमियान जख्मियों की अयादत की है और 15 लाख रुपए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को देने का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया राजा शाहिद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, जख्मियों के अयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे का क्या कहना था? एक बहुत बड़ा हादसा है। तमाम जो लोग जहाँ भाग हुए हैं हर एक के लिए 15 लाख रुपया फिलफौर और 5 लाख रुपया जख्मी के लिए। दोनों ट्रेनों ट्रैक खुल चुके हैं। कोई जो हादसा होना था वो हो चुका है। सारी 134 ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं। 7 करोड़ पैसेंजर, हमने 1 करोड़ पैसेंजर बढ़ाए हैं और फ्रेट वैगन 7 से 16 की हैं। लेकिन रेलवे में हादसा होता है तो सारी कारकर्दगी जो है वो मान पड़ जाती है। गलती ये हुई है कि हमें ये चूल्हे और ये सिलेंडर जो है ये हमारे महकमे को नहीं जाने चाहिए थे। 2 लाख आदमी जाते हैं 28 तारीख से लेके 10 तारीख तक, उसमें वो छुपा के चूल्हा ले जाते हैं। एक रवायत ऐसी है कि तबलीगी जमात वाले अपना सारा राशन लेकर जाते हैं। डाइनिंग कार तमाम ट्रेनों में ख़त्म कर दिया गया, क्या ये उसकी वजूहात नहीं? ये उसकी कोई वजह नहीं है। तमाम गाड़ियों में हम डाइनिंग दे रहे हैं, ठेकेदार से पैसे नहीं ले रहे, जितने का खाना है उनका दे रहे हैं। ये हादसा इसलिए हुआ कि तबलीगी जमात वाले अपना 15 दिन का राशन लेके चलते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं सानिया लोधरा पर वजीर आजम इमरान खान ने उस वक्त के वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा किया था। क्या सानिया तेजगाम पर वजीर आजम वजीर रेलवे से इस्तीफा लेंगे? इस वक्त वजीर आजम ने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में कबल अज़ इंतखाबात 12 दिसंबर को होंगे। दारुल उमरा ने भी दारुल उलूम के फैसले पर मोहर लगा दी है। दारुल उमरा की जानिब से कबल अज़ वक्त इंतखाबात का बिल रस्मी मंजूरी के लिए मलिका बरतानिया के पास भेजा जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कबल अज़ वक्त इंतखाबात 12 दिसंबर को होंगे। दारुल उमरा ने भी दारुल अवाम के फैसले पर मोहर लगा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दारुल उमरा में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बिल पर काफी देर तक बहस की गई, जिसके बाद इसे मंजूर कर लिया गया। किसी रुकन ने भी बिल की मुखालफत नहीं की, जिसे अब रस्मी मंजूरी के लिए मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ के पास भेजा जाएगा। इससे कबल बिल को दारुल अवाम में 20 के मुकाबले में 438 वोटों से मंजूर किया गया था। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का आखिरी इजलास 5 नवंबर को होगा, जिसके एक रोज बाद इसे तहलील कर दिया जाएगा। 1923 के बाद ये पहला मौका है जब बरतानिया में क्रिसमस से कबल इंतखाबात होने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदियों को 88 रोज हो गए। मसनूम कश्मीरियों की मुश्किलात बदस्तूर बरकरार हैं। भारत ने आज मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करते हुए उसे 2 इलाकों में तकसीम कर दिया है। तो रहमान से गुजारिश की थी कि वो इस मौके पर एहतजाज ना करे, क्योंकि कश्मीर कौस को नुकसान पहुँच सकता है। इस वक्त अब्दुल रशीद तराबी हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आबिद काज़मी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मेंबर कानून साज़ असम्बली आज़ाद कश्मीर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रशीद तराबी साहब मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं इनसे कश्मीर के हवाले से पूछा जाए, क्योंकि यहाँ बरतानिया में जो कश्मीर फ्रीडम मार्च हुआ है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फ्रीडम मार्च जिस मकसद के लिए किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ है? तराबी साहब, बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। आप बताएँ कि क्या ये मकसद पूरा हो गया है फ्रीडम मार्च का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और उसमें तमाम सियासी जमातें, उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम और हमारे मेंबरान पार्लियामेंट, कम्युनिटी लीडर्स, काउंसलर्स, सब लोग उसके अंदर शरीक थे। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी और एक बड़ी भरपूर कार्रवाई हुई है। एक याददाश्त भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्तरका तौर पर, जिसमें यहाँ के उलमाए कराम भी थे और वहाँ से भी हम लोग एक सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी हुकूमत को हमने जमा कराई है। और इसका मकसद यही था कि इसके ज़रिए एक तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए, यहाँ के वानों को और यहाँ के पॉलिसी साज़ों को, ज़राए इब्लाग को अपने जज्बात के हवाले से आगाह करना और दुनिया को भी ये बताना कि इस हवाले से आलमी बरादरी की भी जिम्मेदारी है, बरतानवी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बरतानिया इस मसले में एक फ़रीक है। इनके लॉर्ड माउंटबेटन की मिली भगत से उस वक्त जो भी एक प्रोसेस हुआ, वही एक इस मसले की बुनियाद बना है कि उस वफद को मैनेज किया इंडिया ने। और यूरोपियन पार्लियामेंट में जो राइट विंग के लोग हैं, जिनके तस्सुबात हैं, हमेशा एक मुतअस्सिबाना रवैया है मुसलमानों के हवाले से, और जिनको नरेंद्र मोदी अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है, जिस तरह से उसका एक फाशिस्ट तस्वर है, उसी तरह का नुक्ता नज़र ये भी रखते हैं। उनको वो बुला के मैनेज करके ले गए हैं, लेकिन उनकी कोई आज़ादाना मुलाकातें वहाँ पर नहीं हुई हैं कि वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते, ज़राए इब्लाग के लोगों से मिलते, सियासी कायदीन हुर्रियत से मिलते, सोसाइटी के आम लोगों से मिलते, दानिश्वरों से मिलते, वकला। फजल रहमान के नाम एक मैसेज। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, बड़े ज़ीरक रहनुमा हैं। मैंने अपने तौर पर जब उन्होंने इस मार्च का आगाज़ किया तो जमीयत उलमा के जो हमारे कायद हैं, उनके नुमाइंदे मौलाना सईद यूसुफ साहब, उनकी वसातत से, और चूँकि मैं हुर्रियत कायदीन इस तरफ पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी करें। रूस में पाकिस्तान एसोसिएशन सेंट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह कश्मीर की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए वफ़द ने सेनेटर शिबली फराज की क़यादत में खुसूसी तौर पर शिरकत की। शाहिद घुमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एसोसिएशन सेंट पीटर्सबर्ग के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सदर पाकिस्तान एसोसिएशन सेंट पीटर्सबर्ग जान मोहम्मद और डॉक्टर मुख्तार ने सर अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान खसूसी सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर जवाद अब्बासी और मीर कबीर अहमद शाही थे, जबकि पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज और डॉक्टर जाहिद अली खान के अलावा कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में सेनेटर शिबली फराज का कहना था, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काबिक हल होना चाहिए। अगर भारत अपने मज़मूम मज़ाइम से बाज न आया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए राह हमवार करें। अगर ऐसा न हुआ तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। तकरीब से पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज, रिजवान गनी और दाऊद शाह ने भी खिताब किया। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चैरिटी डिनर और कवाली नाइट मुनक्किद की गई, जिसमें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम समेत ख़वातीनों हज़रात की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर कवाल गफूर मोइज़ मुस्तफ़ा की लाइव परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले चैरिटी डिनर में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अजीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खालिद महमूद, वाइस काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खटक समेत दीगर अहम शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि इदारा पाकिस्तान में गरीब और बेसहारा बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है और पाकिस्तान के मामारों का मुस्तकबिल रोशन करने में कोशां है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, आमना सुल्तानी और दीगर शुरका का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात से कम्युनिटी को जहां आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है, वहीं पर इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा भी उभरता है। Such functions are very, very useful and better for the community. As the Manhaj is doing very well for the education, and we should to participate in this one. And my message to everyone, because these kind of functions are very, very important even in our community, because some areas are very, very deprived. बर्मिंघम से डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों ने शिरकत की और मैं समझती हूँ कि ऐसे चैरिटी डिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका इनेकाद करें और जिसका मकसद एजुकेशन फॉर ऑल और ऑर्फनेज प्रोजेक्ट को प्रमोट करना था। और उसके अलावा बहुत सारे बहुत ख़ास हमने कवाली परफॉर्मेंस सुनी। फंडरेजर्स ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये होता है कि वो वाली अवाम, वो वाले मुल्क और वो वाले ममालिक जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ डेवलपमेंट बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इन डेवलप्ड मुल्कों में है। में मौजूद रहनुमाओं का मजीद कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार मुआशरे को इल्म से रोशनास कराने पर है और मिनहाज वेलफेयर इसकी एक कड़ी है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। APL ग्लोबल लॉजिस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अताउल्लाह खान का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार के वसी मौके मौजूद हैं। उनकी कंपनी की तरक्की इस बात का सबूत है कि UAE में सरमायाकारी के लिए कितना साजगार माहौल है। तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। APL ग्लोबल लॉजिस्टिक ग्रुप ने लॉजिस्टिक सर्विसेज के मैदान में कलील अरसे में तरक्की की नई राहें मुतय्यन की। ग्रुप के चेयरमैन अताउल्लाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कंपनी के हवाले से बताया कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स की लॉजिस्टिक सर्विसेज में दुबई की टॉप की कंपनीज में शुमार होती है। हम यहाँ पे एक्चुअली जितने भी मोबाइल फ़ोन्स के कंपनीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के, वो हम यहाँ से इस ब्रांच से हैंडल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी क्लाइंट्स है वो हमसे खुश है, सेटिस्फाइड है और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है तरक्की की तरफ जा रही है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि 22 साल कबल जब वो UAE आए थे तो उन्होंने जीरो से काम शुरू किया था। आज उनका कारोबार 3 ममालिक UAE, हांगकांग और हॉलैंड में मौजूद है। मैं जब यहाँ आया था 22 साल पहले तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 3 कंट्रीज़ में बेस्ड दुबई है और 3 कंट्रीज़ में मैं बिजनेसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अगर उसको लोग अचीव करना चाहे तो। हमारे ब्रांचेस दुबई में हमारे 3 ब्रांचेस है और हांगकांग में हमारा ब्रांच है, नीदरलैंड में हमारा ब्रांच है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उनकी कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही है और उनके क्लाइंट्स कंपनी की सर्विसेज से पूरी तरह मुतमईन हैं। उनका मजीद कहना था कि एक्सपो 2020 दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश है। वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं क्योंकि इस नुमाइश से उनकी कंपनी को मजीद तरक्की हासिल होगी और APL ग्लोबल लॉजिस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए नई राहें खुलेंगी। अताउल्लाह खान का UAE में कारोबारी हालात पर बात करते हुए कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने सरमायाकारी को बहुत आसान कर दिया है। यहाँ कारोबार के वसी मौके मौजूद हैं। जिस तरह से ये लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं सर्विसेज के और जिस तरह के पोर्टल दे रहे हैं उससे कंपनीज़ के लिए और इजी हो रहा है काम करने के लिए और काफ़ी ग्रोथ हो रहा है और मज़ीद आगे और भी ग्रोथ होगा इंशाअल्लाह। मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सुलेमान नूर ने दुबई में 92 न्यूज़ फोरम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मेमन कम्युनिटी की जानिब से जारी तरक्याती कामों पर रोशनी डाली है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सर खुशनूद से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। The good result is that after 18 years, we have a wonderful organization that's been in education, that's been in frail care, that has been in looking after the widows. We've gone into housing. We've gone into every avenue where the need lies. And we do a tremendous amount of work in Pakistan, as you know. We have been looking after
thousands and thousands, call it hundreds of thousands of students over the last 18 years. And you know our magnificent MITI, which is the Memon Industrial and Technical, which we formed 5-6 years ago, where we knew everybody couldn't go to tertiary education, and we knew this was the time to create vocational. We have a fantastic team. My EXCO team, I mean, these are unbelievable. We have 9-10 of us together there, and they all help. Besides that, you know, we've got 9 chapters in WMO. Each one is a vice president, and they have a whole team under them. All of them play a role, and all of them work together. This is a great vehicle, and it, you know, seamlessly works together. In that way, we all work together to make a difference. And why do we love doing it? Because what better would please our Almighty than we making sure that those that need it most, we can do. We can't change the world, but every one that we touch and every one that we can help in any way, that's the one that really matters. Because that is what Allah wants us to do, and that's to care for mankind. मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्धमत के 9 रुकनी वफ़द ने तख्त भाई खंडरात और पेशावर म्यूज़ियम का दौरा किया। बुद्धमत के पैरोकारों ने पेशावर अजायब घर में अमन की घंटी लगाकर दुनिया पर वाज़े किया कि खैबर पख्तूनख्वा अब पुरअमन इलाका है। मज़ीद तफ़सीलात राहम यूसुफ़ज़ई की रिपोर्ट में देखिए। थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले बुद्धमत के राहबों के 9 रुकनी ग्रुप ने खैबर पख्तूनख्वा का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। दौरे के दौरान वफद ने तख्तबाई में बुद्धमत तहजीब के आसार देखे। राहबों ने तख्तबाई के खंडरात में इबादत भी की। बुद्धमत के मजहबी पेशवाओं पर मुश्तमिल ग्रुप पेशावर के अजायबघर पहुंचा तो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेज़बानी से मुतासिर हुआ, बल्कि अमन व मजहबी हम आहंगी के हवाले से इस सूबे के बारे में बैरूनी दुनिया में पाए जाने वाले तासुर को भी गलत करार दिया। I would like the mankind from the world visit to Pakistan and they can meditate, they can learning the Dhamma from the ancient place of Buddhist in Pakistan, Buddhist heritage in Peshawar, Taxila, थाईलैंड के राहिबों ने जहां कदीम तहजीब की यादें ताज़ा कर दी, वहां पाकिस्तान में इस तहजीब को महफूज करने की कोशिश को भी सराहा। थाईलैंड से आए हुए राहिबों के वफद के सरबराह ने पेशावर अजायब घर में अमन की घंटी लगाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि ये खित्ता अब अमन और मजहबी हम आहंगी का गहवारा है। कैमरामैन नियाज अली के साथ राहम यूसुफ़ज़ई, 92 न्यूज़, पेशावर। आपने मछली तो बहुत खाई होगी, लेकिन कराची में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां एक्वेरियम से अपनी पसंद की जिंदा मछली निकालें और मज़ेदार मसाले लगाकर खाएं। कराची से देखते हैं चांद नवाब की रिपोर्ट में। कराची में अनोखा फिश पॉइंट रेस्टोरेंट आए, एक्वेरियम से अपनी पसंद की मछली मुंतखब करें। और मजेदार मसाले लगवाकर फ्राई करवाएं या ग्रिल करवाएं। खाने वाले कहते हैं ताज़ा मछली खाकर मजा आ जाता है। अपने सामने फ़िश पसंद करते हैं, अपनी नस्ल जो देखते हैं मछली की और बताते हैं कि ये आप मछली जो हमें बना कर दे दें, तो इसका नेमुल बदल नहीं है। ताज़ा मछली माशाल्लाह से ये लोग पूरा जिस तरह खोलते हैं, फ्लैट खोलते हैं, फिर मसाला लगा के इसको बारबेक्यू भी करते हैं और तेल में भी तरते हैं। मछली बनाने वाले कहते हैं इनके मसाले भी बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए ऐसा जायका कहीं और नहीं मिलेगा। मसाले हर किस्म के मसाले जो हैं, लेकिन मसाले भी हम लोग मार्केट के पिसे हुए मसाले यूज़ नहीं करते। हम अपना मतलब होल मसालों को हम अपने पास ही ग्रेन करते हैं। बच्चों की तो जैसे मौजें ही हो जाती हैं, मछली खाते भी हैं और एक्वेरियम में देखकर खुश भी होते हैं। इसके साथ बटेर और देसी मुर्गी भी दस्तयाब है। ताज़ा मछली खाने का चटनी के साथ अपना ही मज़ा है। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची।
शहरी इक़्तिदार में मौसम सरमा की आमद हुई तो गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप की मांग में भी इजाफा हो गया। सूप पीने के शौकीन अफराद का कहना है कि सर्दियों की शामें सूप के बगैर अधूरी नजर आती हैं। इस्लामाबाद से देखिए जान शेर की रिपोर्ट। मौसम सरमा के आते ही इस्लामाबाद में गर्मा गर्म चिकन सूप की दुकानें सज गई। शहरियों की बड़ी तादाद चटपटे कॉर्न सूप का मजा उठाने सूप कॉर्नर्स पर पहुंच गई। शहरी मनपसंद सूप के साथ उबले हुए अंडों और यखनी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सर्द शामों में सूप के मतवाले गर्मा गर्म सूप से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। सूप का तो अपना एक मजा है सर्दियों में। अभी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ यहाँ पे रोजाना आते हैं हर रात और सूप एंजॉय करते हैं। शहरियों का कहना है कि चिकन कॉर्न सूप न सिर्फ जिस्म को हरारत पहुंचाता है बल्कि खुश जायका और मज़ेदार भी होता है। दोस्त होते हैं साथ, बाकी कोलीग्स भी आते हैं अपने ऑफिस के और हम इस तरह आते रहते हैं। और काम से जब थक के आते हैं तो सर्दियों में सूप चुप पी के थोड़ा सा रिफ्रेश होकर फिर अपने चले जाते हैं बेडरूम। सर्द मौसम में बच्चे और बड़े सभी सूप की दुकानों पर खींचे चले आते हैं। गर्मा गर्म सूप न सिर्फ गिज़ाइयत से भरपूर होता है बल्कि सर्दी के मौसम में हरारत मुहैया करने का भी बेहतरीन जरिया समझा जाता है। कैमरामैन वकास महमूद के साथ जान शेर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।